18 national highway projects, total length 300 kilometers, an investment of 6,200 crores project unveiling by Nitin Gadkari sir with the opening of the curtain. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ. Complete projects is explained in the video, sir. It's in 3 minutes video. It's created by our highway authority. Tirthahalli. This town is located in Western Ghats, sir.
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಆದರಣೀಯ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಸರ್. ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ with a felicitation by the government of Karnataka. Please receive the felicitation. Government of Karnataka, on behalf of Government of Karnataka, Shri Satish Jarkivelli sir, giving a felicitation and honoring Shri Nitin Gadkari sir. समृद्ध भारत के लिए, ये समृद्धि का, अभिवृद्धि का हरिकार श्री नितिन गडकरी sir. With a great respect, we are all having gratitude sir. Thanks for giving more funds and budget for the development of Shimoga district sir. Shimoga ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಎಂಪಿ ಸರ್ ಅವರು, PY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ PWD ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. कर्नाटक राज्य के PWD मिनिस्टर सतीश जारकिहोली जी, शिमोगा के लोकप्रिय सांसद राघवेंद्र जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी देवेंद्रप्पा जी, MLA अर्गा जोवेंद्रा जी, MLA चन्नबरप्पा जी, MLC उदरेगौड़ा जी, MLC गुरुराज गवीहोले जी, मंच पर बैठे हुए सभी एक्स MLA, MPs, अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. मुझे देश में अनेक राज्यों में जाने का मौका मिलता है और मुझे सबसे खुशी होती है जब कर्नाटक का गीत मैं सुनता हूं. आई रियली लाइक इट and I don't have any hesitation to say that it is to be the best in the country as far as the state is concerned. मैं कन्नड़ तो नहीं समझता हूं, पर कुछ शब्दों से उसका भावार्थ मैं समझता हूं. I really like it and giving my thanks to जिन्होंने इनको रचा है, जिनकी शब्द रचना है, जिनका संगीत है, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं. मुझे बहुत खुशी है कि राघवेंद्र जी ने बहुत बार यहां के कार्यों के बारे में मेरे ऑफिस में फॉलोअप किया. वो लगातार आते रहे
और आप सबके प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे सामने रखे। उनके साथ साथ हमारे बाजू के एमपी जो देवेंद्रप्पा जी है, वो भी बेल्लारी के रोड के बारे में मेरे पास बहुत बार आते थे। उनको देखकर ही मैं बताता था कि अब ये होगा काम। तो विशेष रूप से मैं राघवेंद्र जी को और देवेंद्रप्पा को, उनके बहुत से काम, लगभग सब काम मैंने पूरे कर दिए हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि कर्नाटक एक प्रगतिशील और समृद्ध और संपन्न राज्य है। कर्नाटक की जो इकोनॉमी है वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। बंगलोर कर्नाटक की हार्ट है और इसलिए स्वाभाविक रूप से कर्नाटक के विकास में जो गति बढ़ेगी उतना हमारे देश का विकास होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है कि वी नीड टू हैव मेक इंडियन इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। द मिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर to make Indian economy of $5 trillion, and at the same time it is the mission for all of us to make India आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके हमें देश का विकास करना होगा। अभी मैं बेलगांव में था, मैंने कहा कि कर्नाटक में शुगर फैक्ट्रीज है, इथेनॉल बनता है, और मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते मैंने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के लगातार पीछा किया है। मैं 2004 से इस पे काम कर रहा हूं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक, अब ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारा भविष्य है। हम 16 लाख करोड़ रुपए का लगभग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। आज ही मैंने बेलगांव में कहा कि हमारा किसान अन्नदाता है, देश के लिए पूरा अनाज तैयार करता है, पर उसके बाद वो ऊर्जादाता बना। शुगर फैक्ट्री में पावर तैयार होने लगी और अब हमने विशेष रूप से प्रयास करके राइस स्ट्रॉ, जिसको आप परली, आपको यहां क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, पैडी का जो निकलता है भूसा, उससे हम इथेनॉल बना रहे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे, बिटुमिन बना रहे, और हरियाणा और पंजाब में उसकी शुरुआत हुई है। तो अब किसान बिटुमिन दाता हुआ, अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता। और अब हम इथेनॉल से हवाई ईंधन तैयार कर रहे हैं। स्पाइस जेट के एक हवाई जहाज को हम देहरादून से दिल्ली लेकर आए। एयर एशिया की एक हवाई जहाज को बायो एविएशन फ्यूल पर चलाया गया। हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट 2 साल के पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में बायो एविएशन फ्यूल पे चले। अब मेरा विश्वास है कि इथेनॉल से हवाई ईंधन बनेगा। अब किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता के साथ अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा कर्नाटक ये हमारे बायोफ्यूल का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर्नाटक में बन रही है। मेरे पास जो इथेनॉल की गाड़ी है जो 100% इथेनॉल पे चलती है, टोयोटा की इनोवा, जो 60% बिजली तैयार करती है और 40% केवल इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज अगर ध्यान में लिया जाए तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। और इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी को और कर्नाटक सरकार को अनुरोध करूंगा कि अभी हम देश में 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के द्वारा खोलने का निर्णय हुआ है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आपके बगास से एग्रीकल्चर बायोमास से जो बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, बायो गैस बना रहे हैं, वो पाइपलाइन में जोड़ने की पॉलिसी अब हम तैयार कर रहे हैं, लगभग तय हो गई है।
और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें किसानों का और गांव का बहुत बड़ा विकास होगा। हमारी स्मार्ट सिटी जैसी बन रही है, वैसे स्मार्ट विलेज भी हमारे देश में बनेंगे। भाई और बहनों, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात को अक्सर याद रखता हूं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई मुझे बनाने का मौका मिला। और तब मुझे याद है कि ये सब प्रोजेक्ट जब बने तब मैंने मेरे ऑफिस में एक बोर्ड लिख कर रखा था, जो जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि शिवमोगा में जो नए नए रास्ते रोड बन रहे हैं, उससे इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारा कर्नाटक के साथ हमारा देश प्रगति और विकास के हाईवे पर जोरों से दौड़ेगा। हमारी सरकार जब आई तब कर्नाटक में 6,707 किलोमीटर हाईवे थे। आज हमारे कर्नाटक में 8,200 किलोमीटर हाईवे हुए। मैं कर्नाटक में 3 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। करीब 80,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है वो करीब 90,000 करोड़ के हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ के हैं, जिसमें कर्नाटक बहुत विकसित होने वाला है। मैं आप सबको विश्वास देता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तब कर्नाटक के नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर होंगे, इतना विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। आज हमने 4,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 12 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया है। 1,450 करोड़ की लागत से 5 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही वो हमें लैंड एक्विजिशन और आदरणीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही वो हमें लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के काम में विशेष रूप से मदद करें। अगर वो हो जाएगा तो निश्चित रूप से और गति से काम होगा। अभी राघवेंद्र जी ने कुछ डिमांड मेरे पास की थी। वाइंडिंग ऑफ NH 369E फ्रॉम सागर टू मारकुटका, ये रोड का वाइडनिंग मैं मंजूर कर रहा हूं और आने वाले समय में इसके कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। वाइडनिंग ऑफ बयंदूर टू राणेबंदूर सेक्शन NH 766C, इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्दर्न पोर्शन बाईपास शिमोगा का, उसका DPR रेडी है, पर मेरा अनुरोध है कि पहले ये रोड पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर भी हम पॉजिटिव जरूर विचार करेंगे। NH 66 पर जो बेंदूर सिटी के पास 6 VUP और फ्लाईओवर की उन्होंने मांग की है, 4 लोकेशंस को मैं मंजूर कर रहा हूं। एक लोकेशन मुल्लीकोटे में सर्विस रोड जो है वो बनेगा और एक का 60 मीटर पर ही है, वो मैं वेरीफाई करूंगा। उन्होंने 3 प्लेस पर हाई मास्ट लाइट लगाने की बात की है और ये निश्चित रूप से 3 प्लेसेस पर बेंदूर सिटी ऑन NH 66 पर मैं ये लाइट लगाने के आदेश भी दे देता हूं। मुझे और एक बात की खुशी है कि उन्होंने NH 169A पर अगुम्बे घाट के लिए टनल बनाने की डिमांड की है। मैंने अभी अधिकारियों से चर्चा की है, इसको एग्जामिन करके, इसका अध्ययन करके मैं जरूर उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमकुर से शिवमोगा तक सेक्शन NH 206 4 पैकेजेस में 215 किलोमीटर करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्चा करके हम ये काम कर रहे हैं। ये जनवरी 2025 में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। यह कर्नाटक के 4 प्रमुख जिले
तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर एंड शिवमोगा को कनेक्ट करेगा। यह प्रमुख इंडस्ट्रियल टाउन्स कॉयर इंडस्ट्री की ऑफ गुब्बी और टिप्तूर, मचिनोल्ली, ये इंडस्ट्रियल एरिया, भद्रावती स्टील प्लांट इंडस्ट्री, होन्नावरा पोर्ट व शिवमोगा टाउन को कनेक्ट करेगा। मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जोगफिल्स, भांगरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सकरबेलू हाथी शिविर, अगुम्बे, होन्नावरा, इनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। बेंगलोर से शिवमोगा तक यात्रा का समय जो 5 घंटे लगता है वो 2.5 से 2.25 घंटे होगा, ऐसा मैं उनको वचन देता हूं। लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग की वजह से 18 किलोमीटर की लेंथ में काम रुका हुआ है। आदरणीय मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मीटिंग लेकर अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो तुरंत ये काम पूरा हो सकता है। हसन, हुलियूर, हिरियूर, इस सेक्शन में 3 पैकेजेस, लेंथ 137 किलोमीटर, इसकी कीमत है 4,200 करोड़ रुपए। यात्रा का समय 3.5 घंटे से कम होकर 1.25 घंटे तक आ जाएगा, ऐसा ये रोड हम बना रहे हैं। स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस इसका पेंडिंग है। मैं हमारे सांसदों को, एमएलएस को और आदरणीय मंत्री जी को कहता हूं कि थोड़ा सा ये हमें जल्दी क्लियर कर दीजिए ताकि ये काम जल्दी आसानी से हो जाएगा। 5 पैकेजेस की लेंथ 115 किलोमीटर है, 5,105 करोड़ रुपए। पश्चिमी घाट, विशेषकर शिरडी घाट के वर्षा ऋतु के दौरान लैंडस्लाइड पर विचार करते हुए NH 75 के बेंगलोर से मंगलोर खंड तक वैकल्पिक पतन संपर्क सड़क का होगा। कुशालनगारा से बेंगलोर तक यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर 2.25 घंटे हो जाएगा। ऐतिहासिक शहर मैसूर से मदिकेरी तक कोई रेल संपर्क नहीं है, इसलिए यह सड़क बेहतर संपर्क के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैसूर से मल्लपुरम हाईवे अंडर DPR है। हम जल्दी ही, ये 65 किलोमीटर का हाईवे है, इसकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए है। अल्टरनेट कनेक्टिव रोड टू वायनाड, बांदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट और काजीकोड से मैसूर के बीच मौजूदा सड़क पर रात 9 बजे से 6 बजे तक यातायात प्रतिबंध है। अल्टरनेट रूट के फॉर्म में केरला टू कर्नाटका स्टेट के लिए बेंगलुरु और मल्लपुरम के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तुमकुर सिटी बाईपास, लेंथ 44 किलोमीटर, कॉस्ट 2,06,000 करोड़ रुपए, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क में से एक है। वसंता नरसापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शिवमोगा, होन्नवारा, करवारा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इसके साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसका प्रोजेक्ट, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तुमकुरू, शिवमोगा और चिकमगलूर जिले के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए बेंगलोर के पर्यटकों को परेशानी मुक्त निश्चित रूप से सुविधा प्राप्त होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है। मैं चाहता हूं कि इस साल दिसंबर तक हम बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे पूरा करेंगे और बेंगलोर से चेन्नई की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी होगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूं। यह एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 18,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक में 71 किलोमीटर, आंध्र में 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में 106 किलोमीटर से गुजरता है। इसे 120 किलोमीटर आवर के गति से इसको डिजाइन किया गया है। अब चेन्नई और बेंगलोर का समय 2 घंटे से भी कम होगा। कर्नाटक के भीतर यह बेंगलोर ग्रामीण और कोलार जिलों से होकर गुजरता है। यहाँ 3 पैकेजेस कर्नाटका के हैं जो वर्क चालू है। भारत के सबसे पहले 2 प्रमुख IT हब बेंगलोर और चेन्नई के बीच में ये जोड़ा जाएगा और कर्नाटक और तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। तमिलनाडु के पोर्ट का भी उपयोग कर्नाटक के लोग कर पाएंगे। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी हम चेन्नई पोर्ट से जोड़ने से वो भी काम होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और निश्चित रूप से नए इंडस्ट्री यहाँ ओपन होगी। बेंगलोर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेंगलोर में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन। हम बेंगलोर के रिंग रोड के लिए 282 किलोमीटर का करीब 17,000 करोड़ का रिंग रोड हमने मंजूर किया है। 30% लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कर्नाटक सरकार दे रही है और ये हम लोग, हमारी कोशिश है, अभी 35% काम पूरा हुआ है।
इस साल दिसंबर एंड तक हम बेंगलोर के रिंग रोड का काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में जो लैंड एक्विजिशन है उसके बारे में आप भी मीटिंग कराइए, थोड़ी कुछ समस्या हमको सुलझा दीजिए। बेंगलोर के उपनगर क्षेत्र में होसकोटे, देवनहल्ली, दोडालपुल्लापुर, रामनगर, कनकपुरा और अनेकल ये कर्नाटका के गांवों को जोड़ेगा। तमिलनाडु में होसूर को भी जोड़ेगा। यह नेलमंगला तालुक बेंगलोर ग्रामीण जिला में ये एमएमएलपी को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। चेन्नई पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट कनेक्टिविटी होगी और ये निश्चित रूप से दिसंबर एंड तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आज बेलगांव में जगन्नाथराव जोशी जी की याद कर रहा था। वो कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब हम सोलापुर टू कर्नूल ये हाईवे बना रहे। ये हाईवे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से जाता है। ये दिल्ली मुंबई हाईवे से, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, पूरे साउथ को कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब दिल्ली से कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु आने के लिए आपको मुंबई और पूना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोल्हापुर और सोलापुर के मार्ग से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेन्नई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस करीब 310-20 किलोमीटर कम होगा। ये करीब 50,000 करोड़ का हाईवे है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हाईवे आपको समझना होगा तो हिमाचल प्रदेश में मनाली में आप गए होंगे और मनाली से रोहतांग पास यानी हिमालय के ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अब वहां हमने अटल टनल बनाई है जिसमें केवल 8 मिनट में आप जा सकते हैं और अटल टनल से निकलकर 4 टनल हमने बनाई है लद्दाख और लेह तक, और फिर लद्दाख लेह के बाद जोजिला टनल कारगिल के नीचे बनाई है जो आशिया की सबसे बड़ी 11 किलोमीटर टनल है। वहां से झेड़मोर टनल से श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल और अच्छा रोड बना रहे। कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे से सूरत आएंगे और सूरत से अहमदनगर, अहमदनगर से नासिक, नासिक से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी तक, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ा जाएगा। मुझे बहुत विश्वास है कि कर्नाटक के सब पोर्ट को भी हम जोड़ रहे हैं। विशेष रूप से कुछ जगह थोड़ी अड़चने हैं जिसका जिक्र मैंने बेलगांव में किया था। आदरणीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, हम लॉजिस्टिक पार्क भी कर्नाटक में बना रहे हैं। हम 350 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहे हैं करीब 1.5 लाख करोड़ के। उसमें कर्नाटक में 16 रोपवे हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कोदाचंद्री हिल्स रोपवे और कोप्पला डिस्ट्रिक्ट में अंजनादी हिल्स पर मैंने दोनों को मंजूरी दी है। 2 महीने के अंदर उसके कार्य का शुभारंभ होगा और बाकी का भी काम हम जल्दी करेंगे। सीआरएफ में 2000 करोड़ रुपए हमने कर्नाटक के लिए मंजूर करके दिए हैं। इसमें साथ साथ सेतु बंधन में 22 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। आज मैं घोषित करता हूं कि शिमोगा में नागेंद्र कॉलोनी, फिर अरसोलुर, ऐसे 2 आरओबी मैं आज मंजूर कर रहा हूं। तुमकुर में कोलीपोलिया, अर्गुंजना होली और ये 2 फ्लाईओवर, 2 आरओबी मैं मंजूर कर रहा हूं। और चित्रदुर्ग में कोडागी, मड़गुगी, ये भी आरओबी मैं मंजूर कर रहा हूं। तीनों के काम 3 महीने में शुरू हो जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। मैं विशेष रूप से कर्नाटक के मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक स्टेट पीडब्ल्यूडी में जो एनएच डिवीजन है उसमें और एनएचआई में भी हम कर्नाटक सरकार का सहयोग लगातार मांगते हैं और उनका भी सहयोग मिलता है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से हमारे जो आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राघवेंद्र जी, इनके नेतृत्व में शिमोगा का विकास होगा
और भारत सरकार की ओर से मैं पूरी तरह उनको मदद करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।